ہے کوئی کہتا ہے کہ میری دعا پوری ہوئی تو میں یہاں فلاں چیز پیش کروں گا یا فلاں عمل کروں گا۔ اب یہاں ایک عجیب و غریب کرامت ہے جو اس درگاہ کو اور بھی خاص بناتی ہے۔ جب لوگوں کی منتیں پوری ہو جاتی ہے وہ واپس درگاہ پر آتے ہیں، لیکن یہاں ایک روایت ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور جو چیز وعدہ کی تھی وہ پیش کر دیتے ہیں تو وہ بیڑیاں خود بخود کھل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنا وعدہ بھول جائے یا جان بوجھ کر پورا نہ کرے تو سن لیجئے وہ بیڑیاں کبھی نہیں کھلتی۔ تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑی علاقہ اور یہ کتنی گہرائی ہے، ادھر نیچے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو کہ ہم لوگ میں ابھی اوپر جانے والا ہوں اور ادھر ہی سے سارے لوگ اوپر چلتے ہیں، تو ادھر کا بھی آپ کو نظارہ کراتا ہوں۔ دیکھیے دیکھو لوگ جو ہے نا اوپر جا رہے ہیں، ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان شہنشاہ صابری، اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے اور دلچسپ ولاگ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی روحانی درگاہ اور اس کی کرامت کا قصہ سنائیں گے جس کا نام سنتے ہی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں وشال گڑھ کے بادشاہ، اللہ کے ولی حضرت سید ملک ریحان میرا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو چلیے اس روحانی سفر کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ درگاہ کیوں بن چکی ہے ایک شفا خانہ۔ پیارے دوستو، حضرت سید ملک ریحان میرا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ وشال گڑھ میں واقع ہے، اور یہ جگہ لوگوں کے لیے ایک عظیم روحانی مرکز ہے۔ دور دراز سے لوگ یہاں اپنی منتیں لے کر آتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی اپنی خواہشات کی تکمیل مانگتا ہے۔ یہ لوگ درگاہ پر آتے ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اور اپنی منت پوری ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میری دعا پوری ہوئی تو میں یہاں فلاں چیز پیش کروں گا یا فلاں عمل کروں گا۔ اب یہاں ایک عجیب و غریب کرامت ہے جو اس درگاہ کو اور بھی خاص بناتی ہے۔ جب لوگوں کی منتیں پوری ہو جاتی ہے وہ واپس درگاہ پر آتے ہیں، لیکن یہاں ایک روایت ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور جو چیز وعدہ کی تھی وہ پیش کر دیتے ہیں تو وہ بیڑیاں خود بخود کھل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنا وعدہ بھول جائے یا جان بوجھ کر پورا نہ کرے تو سن لیجئے وہ بیڑیاں کبھی نہیں کھلتی۔ یہ کرامت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ ہم دنیا سے چاہے کتنا ہی چھپانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ اور اس کے اولیاء سب کچھ جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ کرامت چیخ کر بتاتی ہے کہ اللہ کے اولیاء کی روحانی طاقت آج بھی زندہ ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو یہ بیڑیاں کیوں نہ کھلتی؟ جب لوگ حضرت کا نام لیتے ہیں، اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں تو وہ بیڑیاں خود بخود کھل جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے اور اس کے اولیاء سے کیا گیا وعدہ کبھی نہ توڑنا چاہیے۔ ہمیں اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے اور جو دعا مانگے اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ درگاہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے اور اس کے اولیاء ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سید ملک ریحان میرا رحمۃ اللہ علیہ وشال گڑھ کے عظیم ولی اللہ تھے۔ آپ کی زندگی ایمان، عبادت اور کرامتوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی درگاہ آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے روحانی سکون کا مرکز ہے۔ آج ہم آپ کو ان کی ایک ایسی کرامت سنائیں گے جو آج بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔
बात उस वक्त की है जब हज़रत सैयद मलिक रेहान मीरा रहमतुल्लाह अलैहि अपने इबादत गाह में बैठकर अल्लाह के इबादत में मसरूफ़ थे। इतने में एक जादूगर जिसका नाम गोपाल था एक बारात लेकर आपके इबादत गाह के सामने से गुजर रहा था, लेकिन ये कोई मामूली बारात नहीं थी बल्कि ये एक संगीन गुनाह का अमल था। गोपाल जादूगर सगे भाई बहन की शादी करवा रहा था जो कि शरअन हराम है। हजरत ने जब ये मंजर देखा तो आपने गोपाल से फरमाया, ये शादी दुरुस्त नहीं है और ये बाजे बजाना भी गलत है, उसे फौरन बंद करो। लेकिन गोपाल जादूगर ने न सिर्फ आपकी बात को नज़रअंदाज किया बल्कि गुस्ताखी करते हुए हजरत पर जादुई वार करने शुरू कर दिए। हजरत ने सब्र से उसे कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन गोपाल ना माना और अपने जादू के वार जारी रखे। आखिरकार जब गोपाल धर्मी हद से बढ़ गई तो हजरत ने अपनी तस्बीह का एक दाना उठाया और उसे गोपाल की तरफ फेंक दिया। दोस्तों, जैसे ही वो तस्बीह का दाना गोपाल और उसकी बारात पर लगा, अल्लाह के हुक्म से करामत हो गया। पूरी बारात गोपाल समेत पत्थर की मूर्ति बन गई और सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि ये पत्थर आज भी विशालगढ़ में मौजूद है। लाखों लोग वहाँ जाते हैं, उन पत्थरों को अपनी आंखों से देखते हैं और हजरत की करामत पर ईमान लाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के वलियों की इज़्ज़त करना और गुनाह से दूर रहना कितना ज़रूरी है। गोपाल जादूगर ने न सिर्फ गुनाह का इर्तिकाब किया कि अल्लाह के वली की नाफरमानी की, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। ये करामत हमें ये भी बताती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हमेशा हिफाजत करता है। तो आइए हम सब अहद करें कि हम गुनाह से बचेंगे, अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे और इस वाक़या से सबक सीखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये था विशालगढ़ की इस अजीम दरगाह और हज़रत सैयद मलिक रेहान मीरा रहमतुल्लाह अलैहि की करामत का किस्सा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुँचे। अल्लाह ताला हम सबको अपने औलिया की बारगाह से फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आप देख सकते हैं ये हमारे रेहान भाई हैं, तो यहाँ पर आइएगा जरूर और जो है ना चद्दर फूल वगैरह जो भी लेना होगा यहाँ से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जो है ना शब्बीर भाई, रेहान भाई के नाम से अब किसी को भी अगर पूछेंगे तो कोई भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और इनकी दुकान से आप जो है ना चद्दर फूल वगैरह और अच्छी कीमत में अच्छी चीज आपको मिल जाती है यहाँ पर बेहतरीन कीमत में। तो रेहान भाई, सरकार के बारे में कुछ आप बताइए। बाबा का आपका ना माशाल्लाह, यहाँ पे कर्नाटक से बहुत से मुंबई से कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ बेशक। और यहाँ पर आके मन्नत मांगते हैं। कोई बीड़ी की मन्नत करता है, कोई मुर्गी की न्याज की मन्नत करता है। वो यहाँ पे मन्नत मांगने के बाद उनका काम करा होने के बाद आके जो भी अपनी ताकत के हिसाब से यहाँ पर करता है। कोई औलाद के बारे में न्याज करता है, मन्नत करता है। जिसका औलाद नहीं रहते तो यहाँ से गोद भराई करके जाता है। बाबा के दुआओं से उनको औलाद होते थे। और दूसरी बात है, यहाँ पर जो इसका कारोबार में, रोजे में बरकत में रहते हैं, यहाँ पे बीड़ी की मन्नत करता है, कोई फूल चढ़ाता है, वो आके न्याज अदा करते हैं बाबा के आस्थाने पे। और उर्स के मौके पर मलिक रेहान मीरा साहिब का गैब से दरवाजा खोलता है। यहाँ पे गैब से दरवाजा खोलता है। ये अभी बकरी ईद आने वाले उसके दूसरे दिन बाशी ईद रहता ना, उस दिन से बाबा का उर्स चालू होता है। तो उस दिन से लेके तो 3 दिन उर्स चालू रहता है। 3 दिन दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है। हिंदू मुस्लिम भाई लोग यहाँ पर आते हैं वो करामत दिखने के लिए। बाबा मलिक रेहान बाबा को करामत दिखलाते अपने, जो जिसका में असरात है। यहाँ पर बाबा का जो नगारा बजता है वो नगारे में असरात तो निकल जाता है। इसका करने के लिए जो कुछ भी रहेगा प्रॉब्लम सब यहाँ पर निकल जाता है।
सरकार की कराम। जिंदगी करामत है। और हमने सुना है कि आप जो है ना एक बरातियों को जो है ना पत्थर बना दिए। वो बाबा के नमाज के बैठे थे वहाँ पर भोपाल जादूगर का नाम यहाँ पर राज कर रहा था। तो भोपाल जादूगर यहाँ पर शादी बना रहा था। तो शादी अपने भाई और बहन की शादी करा रहा था। अल्लाह से मलिक मीराज साहब को हुक्म हुआ कि तुम और जगह पे जाओ और शादी रोको। तुम शादी रोकने के लिए यहाँ पर बाबा आए। फिर भोपाल जादूगर को बोले वो शादी तो रोकना, ये शादी जायज नहीं है। तो फिर बाबा का नमाज का वक्त होगा, बाबा नमाज पढ़ने के लिए बैठे। तो भोपाल जादूगर को बोले तेरा जो भी शादी का बजाना है उसको बंद कर ले, मेरा नमाज का वक्त होगा। फिर भोपाल जादूगर नहीं मानने लगा। फिर बाबा ने नमाज पढ़ के वो करामा दिखाए, पूरे के पूरे बारात पत्थर बनाए। और भोपाल जादूगर था वो माफी मांग के भाग गया, गायब हो गया। और उसमें एक औरत बची थी, वो औरत बाबा के पास आई, बाबा को बोलने लगी मैं भी इसमें शामिल थी। फिर बाबा ने उसको अपनी बहन माना, बहन बना दिया उसको। फिर उसको नीचे मुकाम दे, हर पहला बच्चा आने वाला जिसको औलाद होगी पहले तेरे को नारियल फोड़ेगा, फिर मेरे को आके नारियल देंगे बोलते। तो ये जो पत्थर बना है ये अभी भी पत्थर मौजूद है? अभी भी है। अच्छा, ये किधर है? ये बाबा के बैठे गए ना, नमाज की जगह है, इबादत की जगह। यहाँ से ऊपर जाके दरगाह का इलाका है, वहाँ से ऊपर जाओ, वहाँ पर कोई भी किसी को पूछेंगे बच्चा आपको बताएगा। और मैंने ये भी सुना कि यहाँ पर जो है ना बेड़ी बना जाता है हाथ में पैर में, वो कब बना जाता है और कैसे बांधते हैं? वो बेड़ी का ऐसा है हजरत, यहाँ पे पहले मन्नत लगाने का। अच्छा, मन्नत मांगते हुए बोलने का कि मेरा जो काम है वो पूरा होने के बाद मैं आके बेड़ी पहनूंगा। अच्छा, अगर आपके दिल की ख्वाहिश ऐसी भी है मेरा काम पूरा होने के बाद आके मैं बेड़ी पहनूंगा और फूल की चादर चढ़ाऊंगा, और तुम वो मन्नत अदा करने को यहाँ पर आए तो फूल की चादर आपका दिमाग में नहीं है, खाली बेड़ी दिमाग में आए तो खादिम साहब से बोली अब मैं बेड़ी मंगाता मेरा काम के बारे में। तो फिर खादिम साहब बेड़ी पहनाएंगे, बेड़ी पहनाने के बाद पाँच फेरे लगाने बोलते। अगर 5 फेरे में वो बेड़ी खोली तो मन्नत अदा हो गई, नहीं खोली आप क्या भी मांगे वो बोलना मांगता। फिर आप याद करके हाँ मैं फूल की चादर बोला था, तब फिर बाबा के पास माफी मांग के अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के तौबा करने का। फिर वैसे बेड़ी मतलब अगर कोई भी चीज हम चढ़ाना चाहे या कोई मन्नत लेकर आए अगर वो हम भूल जाए तो मतलब गलती से अगर भूल हो जाए तो भी मतलब वो बेड़ी नहीं खुलेगा? बेड़ी नहीं खुलेगी, फिर माफी का नारियल देना पड़ेगा। अच्छा, तो उसका इजहार करना पड़ेगा कि हमने हाँ ये चीज मांगे थे, ये चीज चढ़ाना चाहिए था, हमने चढ़ाया नहीं, अब करना पड़ेगा ये सब। हाँ। अच्छा,